Okay, dear friends, in our income tax we have learned many things. Okay, so till that we have what we have learned, that we have learned various things. Okay, in various things, this is the book which we refer used to. Okay, this is the first chapter. In first unit we have learned many things: theory, objective of income tax, history of income tax, and direct tax, what is direct tax, and definitions, various definition we learn: income, agriculture income, SSC, person, previous years. So all these things we have learned in our previous videos of lectures. Okay, second thing also we learn, the main thing in second unit is this, that residential status. So we have also learned the various example related to this residential status. Now we come to our the main point, main part of the tax. Okay, that is salary income. Okay, so from here you will find salary chapter. So what is salary? First of all we discuss about salary. So as we know that taxation include two parts. Okay, it is divided into two parts. Which two part? Direct tax and indirect tax. Now what do you mean by direct tax? The person is giving directly tax to the government from his own pocket. SSC is giving direct tax from his own pocket. That is nothing but a direct tax. Okay, what are the points you can include in direct tax? So income tax is a direct tax, professional tax is a direct tax, wealth tax is a direct tax. The second part of taxation is indirect tax, which is not directly given to the government, but it is through proper channel or through various intermediaries. This tax goes to the government. Okay, now previously we have various things like sell tax or VAT or etc., but now we have the one unique tax, which is a combination of 17 different indirect tax. The tax is known as GST. Okay, goods and services tax. So that is nothing but an indirect tax. You buy anything, okay, any product, or you will get service, any kind of services, and on that you have to pay tax. Okay, excise and etc etc, octroi and different types of tax are indirect tax. That already we have learned. Now in income tax, okay, here how you get income, how any person get income. अगर किसी की इनकम होती है तो कैसे होती है? इनकम पाने के रास्ते कौन से? किसी भी आदमी को इनकम अगर मिलती है तो कैसे मिलती है? तो इनकम पाने के 5 हेड्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल है सैलरी. सैलरी मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? बराबर, आपके फादर अगर जॉब करते हैं और उनको मंथली जो इनकम दी जाती है उसको क्या कहते हैं? सैलरी, मेहनताना. बराबर, कोई भी आदमी काम करता है और उसको जो पैसा दिया जाता है मंथली बेसिस पर, उसको क्या कहते हैं? सैलरी. सेकंड उसमें आएगा हाउस प्रॉपर्टी. बराबर है, हाउस प्रॉपर्टी मतलब मकान भाड़े पे देना है, उसकी इनकम आती है, वो भी हमें डायरेक्ट मिलती है, उस पर डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. थर्ड वन है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन. यहाँ दो चीज़ है, बिजनेस एंड प्रोफेशन. बिजनेस मतलब आप कोई भी चीज़ की बेचते हो या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसकी जो इनकम होती है उसको बिजनेस इनकम कहते हैं या प्रोफेशन इनकम कहते हैं. बराबर, आप आपकी आर्ट बेचते हो, बराबर है, मान लो आप टीचर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, तो जो इनकम हुई वो प्रोफेशनल इनकम हुई. बराबर, तो प्रोफेशनल इनकम को क्या पे किया जाता है? जो गेन होता है वो उस पर टैक्स पे किया जाता है. यहाँ बाजू में सारी सेक्शन भी दी गई है. कैपिटल गेन, कैपिटल गेन मतलब मकान खरीद के बेचा, गहने खरीद के बेचे, शेयर खरीद के बेचा, उन सब पे जो टैक्स दिया जाता है उस पर आपको क्या भरना पड़ता है? कैपिटल गेन भरना पड़ता है. एंड लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. जो भी टैक्स, जो भी पॉइंट, जो भी इनकम आप अबोव 4 हेड में न डाल सको, इस 4 हेड में नहीं आएगी, वो इनकम किस में आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी. बराबर है, जैसे लॉटरी लगी, रास्ते में से पैसा मिला, बराबर, कौन बनेगा करोड़पति में पैसा जीता, रेस में पैसा जीता, जुए में पैसा जीता, तो ऐसी इनकम जो अबोव 4 हेड में नहीं आ सकती है उसको हम क्या कहते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. क्लियर? ये दो जो हेड है, सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो हमारे सेमेस्टर 3 में आते हैं, और ये जो 3 हेड है वो हमारे किस में आते हैं? सेमेस्टर 4 में आते हैं. तो ये जो हेड, इनकम ऑफ हेड्स है 5 हेड्स. किसी भी आदमी को अगर इनकम मिलती है तो ये 5 हेड है, इस 5 हेड के आधार पर उसको इनकम मिलती है. या तो सैलरी मिलती है, या मकान का भाड़ा मिलता है, या धंधा करता है, या फिर वकील है, डॉक्टर है, प्रैक्टिस करता है तो उसकी इनकम आती है, कोई भी चीज़ें महंगी खरीद के बेचता है, या फिर अदर सोर्सेज ऑफ इनकम. तो इस 5 तरीके से ही उसको इनकम मिलती है. इसको अगर यहाँ पर देखें कि टोटल टैक्सेबल इनकम कैसे गिनी जाए, तो यहाँ सिंपल वे में दिया है कि 5 सोर्सेज ऑफ इनकम हमने देख लिया. पहला क्या है? सैलरी. दूसरा हाउस प्रॉपर्टी.
तीसरा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, चौथा क्या है कैपिटल गेन, और पांचवा क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आगे जो देखा, अगर किसी भी आदमी को पांचों इनकम हुई, मेरी अगर सैलरी भी है, मेरा मकान है, उसका भाड़ा भी मिला मुझको, मेरा पार्ट टाइम कोई धंधा है शाम को मैं करता हूँ तो उसकी इनकम हुई, मैंने मकान खरीद के बेचा, शेयर खरीद के बेचा तो कैपिटल गेन हुआ, अदर सोर्सेज भी इनकम मुझे हुई, बराबर है। तो ये पांचों इनकम मेरी हुई, तो लास्ट में अगर मुझे टैक्स भरना है तो पांचों इनकम का पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रोस टोटल करना पड़ेगा, उसको ग्रोस इनकम बोलते हैं। उसमें से जनरल डिडक्शन 80C टू 80A मुझे लेस मिलेगी, ये हम बाद में समझेंगे, बाद में हमारे सिलेबस में आती ही है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो 1.5 लाख रुपए तक का, बराबर है, पोस्ट ऑफिस में, इंश्योरेंस में या म्यूचुअल फंड में सब डिटेल दिया है, तो वो टैक्स फ्री हो जाता है 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट। वो टोटल इन्वेस्टमेंट लेस करने के बाद टोटल इनकम में से आपकी टैक्सेबल इनकम आती है। उसमें भी आपको रिबेट अगर मिलती है तो 87 सेक्शन 87A के अंडर अगर रिबेट के लिए आप अगर एप्लीकेबल हो तो वो मिलता है, वो लेस होता है। उसके बाद टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिलता है। और अगर लास्ट में अगर आपने पहले से ही एडवांस टैक्स या TDS पे किया है तो वो लेस हो जाएगा, आपने एडवांस में टैक्स दे दिया है, जो भी आपकी टैक्स की अमाउंट होगी वो लमसम आपको पता है कि साल में मुझे 50,000 तो टैक्स भरना ही है, तो आपने एडवांस में ही 30,000 टैक्स भर दिया है, या आपका एम्प्लॉय मालिक ने 30,000 रुपये जितना TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पहले से TDS काट ही लिया है, तो वो टैक्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फाइनली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नेट टैक्स पे करना पड़ेगा। पैनल, इंटरेस्ट और रिफंड, आपने अगर लेट टैक्स भरा है तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, आपने अगर ज़्यादा टैक्स भर दिया है तो आपको क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। क्लियर। पांचों हेड की इनकम जो होती है टोटल वो ऐसे होती है, ऐसा स्टेटमेंट बनता है, उसमें पांचों हेड की इनकम आ जाती है, सभी हेड की इनकम, और फिर सभी हेड का अगर डिडक्शन होता है तो भी लेस होता है। अभी हम सभी हेड का नहीं समझेंगे, अभी हम सैलरी का समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स की टोटल इनकम कितनी है दिया है, तो पहले तो ऊपर प्रीवियस ईयर आता है, मतलब जिस ईयर में उसकी इनकम हुई, प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा होगा, ऑलवेज 2019-10 बराबर, उस साल में उसकी इनकम हुई होगी। उसका असेसमेंट ईयर, इस साल हम उसको चेक कर रहे हैं, उसके ये क्या बनेगा, असेसमेंट ईयर बनेगा। ओके, पान नंबर आता है, इंडियन सिटीजन है, सारी चीजें आती है। अब सैलरी इनकम से चालू करते हैं, बराबर है। तो सैलरी का सेपरेट एग्जांपल आएगा, सैलरी का सेपरेट स्टेटमेंट बनेगा। यहाँ तो पांचों दिए हेड का टोटल, पर सैलरी का सेपरेट आएगा। उसमें क्या क्या आ सकता है, तो पहले बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी की अगर किसी की महीने की 20,000 है तो साल की कितनी होगी, 2,40,000, 12 इंटू 20,000, तो 2,40,000 यहाँ पर आएगी। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, जो सैलरी का एक पार्ट माना जाता है, बराबर है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती है तो महंगाई भत्ता दिया जाता है, तो वो भी एक सैलरी का पार्ट है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, बराबर, तो कर्मचारी को एंटरटेनमेंट महीने के लिए, वो महीने में एक अपने फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट करे, इसके लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जाता है। अदर बहुत सारे अलाउंस हम देखेंगे। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट, अगर उसको मकान दिया है विथ फर्नीचर मालिक ने रहने के लिए, कंपनी के मालिक ने, तो वो कितना टैक्सेबल होगा, वो अमाउंट यहाँ आएगी। एम्प्लॉयर एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड है उसका भी कैलकुलेशन आएगा, उसको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, मालिक भी प्रोविडेंट फंड उसके अकाउंट में डालता है, तो वो भी टैक्सेबल अमाउंट्स आएगी। एक्सेस इंटरेस्ट क्रेडिट टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, बराबर, उसका अगर प्रोविडेंट फंड डाला है तो उसका इंटरेस्ट भी अगर है 9.5% तक टैक्स फ्री होता है, उसके अगर ज़्यादा हुआ तो टैक्सेबल होगा। अदर आइटम, बोनस, कमीशन है तो वो भी यहाँ पर आएगा। HRA आएगा, पेंशन आएगा, तो इन सबके सेपरेट छोटे छोटे एग्जाम्पल आएंगे। सैलरी में क्या होगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जाम्पल आएगा, परक्विजिट का एग्जाम्पल आएगा, प्रोविडेंट फंड का एग्जाम्पल आएगा, बराबर, उसका ब्याज का एग्जाम्पल आएगा, HRA का एग्जाम्पल आएगा, पेंशन का एग्जाम्पल आएगा। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट यहाँ रह गई, ग्रेजुइटी, ग्रेजुइटी का एग्जाम्पल आएगा, ग्रेजुइटी। इन सब के सेपरेट छोटे छोटे एग्जाम्पल आते हैं, वो सब करना है, और उसमें से जो टैक्सेबल अमाउंट हुई वो टैक्सेबल अमाउंट आपको यहाँ लिखनी है। इन सब का एग्जाम्पल आएगा, इन सब का टोटल होता है, उसमें से 3 चीज़ें लेस होती है। ये पूरा मिलके सैलरी का एग्जाम्पल होगा, पर ये सारे के सारे कैलकुलेशन सेपरेट 7 से 8 छोटे छोटे एग्जाम्पल होंगे, उन सबका जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है, और फाइनली आपका सैलरी का स्टेटमेंट बनेगा। क्लियर। स्पेसिफिक डिडक्शन, ये सारी इनकम का टोटल होता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रोस सैलरी। उसमें से स्पेसिफिक डिडक्शन लेस होती है। कौन कौन सी डिडक्शन लेस होती है, 3 चीज़ें लेस होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है 50,000 गवर्नमेंट की ओर से, वो लेस हो जाएगी। एग्जम्प्टेड एंटरटेनमेंट अलाउंस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसे अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है तो उसके पॉइंट है, वो कैलकुलेशन करके जो
एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है यहाँ पूरा लिख देना है, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो टैक्स फ्री अमाउंट कहाँ लिखनी है, यहाँ लिखनी है। पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स, अगर प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपया पर मंथ लिया जाता है, 12 महीने का अगर 2400 रुपया उसके पास से लिया है तो वो भी यहाँ पर आएगा, अगर लिया है तो तब जाके उसका क्या होगा, सैलरी का कैलकुलेशन यहाँ पूरा होगा, बराबर। तो पहले तो सैलरी का स्टेटमेंट बनाने के लिए ये सब चीज़ें हमें सीखनी जरूरी है। इन सब के सेपरेट एग्जाम्पल आएंगे, ग्रेजुएटी के 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, एचआरए के 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, परक्विजिट के 3-4 एग्जाम्पल करेंगे, प्रोविडेंट फंड के 3-4 एग्जाम्पल आएंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंस का एक आध एग्जाम्पल आएगा, पेंशन का एग्जाम्पल, इन सबके एग्जाम्पल करके हमें सीखना पड़ेगा। सीखेंगे उसके बाद फाइनली सैलरी का बड़ा एग्जाम्पल आएगा जिसमें ये सारी चीज़ें आती है, तब जाके हमारी टोटल सैलरी क्लियर होती है, बराबर है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, ये सारी इनकम मिला के क्या बनता है, टोटल ग्रोस इनकम। सारा डिडक्शन इन्वेस्टमेंट जो किया है वो लेस होके फाइनल उसका क्या बनता है, टैक्सेबिलिटी अमाउंट ऑफ बनती है, बराबर है। अब यहाँ जो सैलरी में हमने देखा तो सैलरी में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, मैं जो बोल रहा था कि किस किस के एग्जाम्पल आएंगे, देखो यहाँ पूरा दिया है। इनकम इंक्लूड इन सैलरी, सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आपकी बेसिक सैलरी, आपको अगर सैलरी का एडवांस मिला है तो वो भी आएगा, एरियर सैलरी मिली है तो भी आएगी, अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब क्या, भत्ता बोलते हैं जिसको, सैलरी के अलावा जो और इनकम दी जाती है, बराबर है, एम्प्लॉय को अपना खर्चा पे करने के लिए, तो ऐसे अलाउंसेस है। कई कितने अलाउंसेस है, देखो यहाँ दिया है, डीए, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, मकान में रहने का भत्ता, बराबर, ईए एंटरटेनमेंट अलाउंस, सीए सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस मतलब उसको मनोरंजन का भत्ता दिया जाता है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मतलब बड़े शहरों में रहने का खर्चा ज़्यादा आता है तो सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस भी उसको दिया जाता है। फॉरेन गया है या फॉरेन अलाउंस मिलता है, अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो इतने सारे अलाउंसेस मिलते हैं, इसमें से ये और ये का तो एग्जाम्पल आता है पर्टिकुलर, बराबर है। एन्युइटी या पेंशन, तो पेंशन के भी एग्जाम्पल आएंगे, हम सेपरेट देखेंगे। ग्रेजुइटी, ग्रेजुइटी के भी एग्जाम्पल आएंगे, हम सेपरेट देखेंगे। परक्विजिट, कर्मचारी को मकान देते हैं, अगर मालिक मकान देता है तो मकान देता है, फर्नीचर के साथ मकान देता है तो उसके लिए भी अलग अलग कैलकुलेशन है, वो सारे देखेंगे। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, बराबर है, कई बार क्या है वो छुट्टियां कम यूज करता है और छुट्टियों को बचाता है तो उसकी भी उसको सैलरी मिल सकती है। प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला, 12% से ज़्यादा परसेंट पैसा अगर डाला है मालिक ने तो वो टैक्सेबल होगा, उसका ब्याज 9.5% से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल होगा। अदर कोई गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है नोटिफाइड स्कीम में तो वो आएगा। तो ये सब चीज़ें मिला के क्या होता है, सैलरी होता है। सैलरी का एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, यहाँ छोटा है समझाया है, बाद में ये ग्रेजुइटी से सारे एग्जाम्पल चालू होंगे, वो मैं बोर्ड पे करवाता हूँ समझाने के लिए। यहाँ समझने के लिए दिया है, क्या है, श्री विक्रम इज ए एम्प्लॉय इन अ कंपनी एट दिल्ली, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज सैलरी इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। फाइनेंशियल ईयर मतलब हमारा प्रीवियस ईयर, और हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा आएगा, 2021। चलो, उसको बेसिक सैलरी कितनी मिलती है, 25,000 पर मंथ है। तो यहाँ कैलकुलेशन देखो, बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ हुआ, 12 महीने मिलेगा, 12 इंटू 25,000 टोटल कितना मिलेगा, 3 लाख रुपया उसकी सैलरी हुई। क्लियर, ये उसका सैलरी का पूरा स्टेटमेंट है। 7 तरीके की इनकम होती है उसकी, कंपनी उसको 7 तरीके की चीज देती है, सैलरी तो एक देती है, उसके अलावा 6 चीजें और देती है, बराबर है। दूसरा क्या है, डियरनेस अलाउंस 12,500 पर मंथ, महंगाई भत्ता, महंगाई बढ़ती जाती है तो महंगाई भत्ता मिलता है, डियरनेस अलाउंस 12,500, तो 12,500 इंटू 12, 12 महीने का 1.5 लाख रुपया उसके वो मिला होगा, जिसको हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं। तीसरा है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। मैंने पहले ही कहा सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मतलब क्या, बड़े बड़े शहरों में जब जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं तो वहाँ बहुत महंगाई होती है, कर्मचारी अपना घर ठीक तरीके से नहीं चला सकता है, तो उसके लिए और एक एडिशनल अलाउंस दिया जाता है जिसके क्या कहते हैं, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, 20% ऑफ सैलरी, बराबर। सैलरी कितनी है, 3 लाख, 3 लाख का 20%, 3 लाख का 20% कितना होगा, 60,000 रुपये। क्लियर। फिर है एरियर ऑफ सैलरी इन अर्लियर प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन अकॉर्डेंस विद द अवार्ड पे ऑफ कमीशन ₹30,000। यहाँ पहले ही दिया है कि कोई भी सैलरी एरियर मिली हो या एडवांस हो, ये भी सैलरी का पार्टी है, तो यहाँ उसको ये एरियर सैलरी मिली है 30,000, तो वो भी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। रिसीव्ड फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, फॉर्मर एम्प्लॉयर मतलब पहले का कर्मचारी, जहाँ वो पहले नौकरी करता था वो
मालिक, बराबर। तो पहले जो उसका जो मालिक था, उस मालिक ने अगर मान लो उसको 55,000 रुपये दिए हैं, इस साल उसे मिले हैं, पहले नहीं दिए होंगे या रह गए होंगे, तो इस साल अगर 55,000 रुपये मिले हैं तो इस साल क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस। उसने अच्छा काम किया था इसलिए एप्रिसिएशन मिला, उसको क्या मिला, एप्रिसिएशन। तो एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस के लिए 55,000 रुपये मिले इस साल, तो वो भी सैलरी में क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। एडवांस सैलरी 25,000 रुपया, बराबर, उसने एडवांस लिया होगा तो एडवांस सैलरी भी क्या है, टैक्सेबल है, 25,000 रुपया। 1 मंथ ऑफ बोनस, बोनस ऑफ 1 मंथ, तो 1 महीने की सैलरी उसको क्या मिली है, बोनस में मिली है, ये रहा बोनस 25,000 रुपया, 1 महीने का क्या हो गया, 25,000 टैक्सेबल। तो उसको वो नौकरी ही करता है, पर नौकरी में भी देखा ना कितनी चीज़ें मिलती है, 7 चीज़ें मिलती है। बेसिक पे मिला, डियरनेस अलाउंस मिला, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिला, बोनस मिला, पिछले एरियर सैलरी लिया। एरियर सैलरी मतलब सैलरी आपकी बाकी है, ड्यू है, कम दी थी पहले तो अभी दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एरियर सैलरी, बराबर। पिछले मालिक ने, पिछले जहाँ पहले नौकरी करता था उसने एप्रिसिएशन दिया, उसने खुद एडवांस उठाया, बराबर है। तो ये सब मिला के उसकी सैलरी कितनी हुई, 6,45,000 रुपये। वैसे देखा जाए तो सैलरी कितनी है, 3 लाख, पर यहाँ उसकी ग्रोस सैलरी कितनी बनती है, 6,45,000 रुपये। क्लियर। सैलरी में एक चीज़ और जोड़ी जाती है, बोनस और कमीशन, बराबर है। तो बोनस और कमीशन भी सैलरी का पार्ट होती है कि वो काम ज़्यादा करता है तो उसको कमीशन मिलता है, बोनस भी मिलता है, तो उसको भी सैलरी में गिना जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करना है, सैलरी में लेना है। इसके बाद आगे हम देखेंगे ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी के सम आते हैं, मैंने जैसे कहा वैसे यहाँ हर एक चीज़ के सम आएंगे। ग्रेजुइटी के रूल और सम, HRA के रूल और सम, पेंशन के रूल और सम, प्रोविडेंट फंड के रूल और सम, एंटरटेनमेंट अलाउंस के रूल और सम, बराबर। सबके अलग अलग रूल देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे जो भी वीडियो आएंगे उसमें, और सबके मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा, बराबर है। आपको घर पे भी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। इसमें जितना रूल याद रखोगे उतना ही आपके लिए सरल होगा, आपके लिए इजी होगा कि आप उसको कर सको, टैक्सेशन को समझ सको। थैंक यू।